children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, Force, Energy and Simple Machine. Let's learn about force, energy and simple machines. Force. A force is a push or pull that changes the position or state of an object. Examples of force. You can lift a pencil or book off the desk by applying force. When you hit a ball with bat, you apply force on the ball to throw it far away. When you hold something on your hand, you apply force. When you drive a bicycle, you apply force on its pedal with your feet and legs. A wheel cart is often pulled by a horse through application of force. फोर्स किसे कहते हैं? पुश और पुल. किसी भी चीज़ को अगर आप पुश करते हैं या पुल करते हैं और उसकी वजह से उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, दैट इज कॉल्ड फोर्स. अब कुछ एग्जांपल्स हैं आपके. देखिए, जैसे आप पेंसिल या बुक को उठा रहे हैं, आप उसमें क्या कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. आप बॉल को हिट करते हैं बैट से तो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, राइट. आप किसी भी चीज़ को होल्ड करते हैं अपने हाथों से तो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. आप बाइसिकल चला रहे हैं तो पैडल्स पे आप क्या कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, राइट. Do you know the moon keeps moving around our planets because of the force of gravity that the earth has? Moon आपको पता है अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है और किसकी वजह से? Force of gravity जो कि अर्थ में है. Force can cause the following effects. It can move a stationary object. It can slow down or stop a moving object. It can change the shape of an object. It can change the direction of a moving thing. अब फोर्स की वजह से ना कुछ चीज़ें होती हैं. क्या होती हैं? सबसे पहले कि कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? जो अपनी जगह पे फिक्स्ड है, जो हिल नहीं रहा है, उसको मूव करा सकता है. ये किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन कर सकता है या फिर उसे स्टॉप कर सकता है. इसके अलावा किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकता है. इसके अलावा जो मूविंग थिंग है उनके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है. Energy. Energy is the ability of a body to do work. We all need energy to do work. Energy can take many forms. It can be transferred and stored. The sun, a burning candle and a light bulb produce light energy. The sun is a source of solar energy. Moving water possesses energy. It can be transformed into electrical energy. Wind is a non-polluting source of energy. It is used to produce electrical energy with the help of wind turbines. अब energy आपका क्या है? किसी भी बॉडी की एबिलिटी वो काम कर सके. हम सभी को एनर्जी की ज़रूरत होती है और एनर्जी के काफ़ी सारे फॉर्म्स हैं. फॉर एग्जांपल, आपका सन, बर्निंग कैंडल या लाइट बल्ब है, ये लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. और सन तो आपको पता ही है सोलर एनर्जी का सोर्स है. मूविंग वाटर में भी एनर्जी होती है क्योंकि मूविंग वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है. इसी तरह से विंड आपका एक नॉन पोल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी है. इसको यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए. Simple machines. In our daily life, we do various jobs like cutting of paper or cloth, tightening or loosening of a screw, or opening the cap of a cold drink bottle. To do these things, we use various tools like scissors, screwdriver, and bottle opener. All these tools which make our work easier are called simple machines. Simple machines have fewer parts and we use muscular energy to function. Complex machine like a washing machine, crane and a refrigerator consist of several simple machines put together. Such machines mostly use electrical energy or fuel to function. अब हम डेली लाइफ में ना बहुत सारे काम करते हैं. हम कटिंग करते हैं या आपने स्क्रू देखा होगा, कभी इसको टाइट करते हैं या लूज करते हैं. कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को ओपन करते हैं. तो इन सभी चीज़ों को करने के लिए हमें कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ती है. जैसे आपके हैं सीजर, स्क्रू ड्राइवर एंड बॉटल्स. तो इन सभी टूल्स को हम कहते हैं सिंपल मशीन्स. अब सिंपल मशीन्स में ना कुछ पार्ट्स होते हैं. अब आपकी आती है कॉम्प्लेक्स मशीन. कॉम्प्लेक्स मशीन जैसे कि वॉशिंग मशीन, आपका रेफ्रिजरेटर है या केन है. तो इनमें बहुत सारी सिंपल मशीन्स होती हैं, उनको साथ पे रखा जाता है. तो ये जो ज़्यादातर मशीन्स होती हैं आपकी, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करती हैं या फिर इनको फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है फंक्शन करने के लिए. मशीन्स रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन टाइम रिक्वायर्ड टू डू दैट वर्क. कोई भी अगर आपको काम करना है तो मशीन क्या करते हैं, हमारे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है और हमारा जो टाइम है उसको रिड्यूस कर देते हैं. टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स. देयर आर 6 टाइप ऑफ सिंपल मशीन्स. These are a lever, pulley, screw, inclined plane, winch, and wheel and axle. Lever. A lever consists of a rod free to move about a fixed point. If we want to move a huge boulder, we cannot move it with our hands. On the other hand, we can move the boulder with the rod by applying the force. The rod is a kind of lever. A lever has 3 important parts: load, effort, and fulcrum. The object to be lifted by a lever is called load, L, or weight, W. The force applied on a lever to lift the object is called effort or pressure. The point at which a lever turns is called fulcrum. देखिए लेवर में आपका क्या होता है, इसमें आपका एक रॉड होती है which is free to move about a fixed point. अगर आप किसी भी एक ह्यूज बोल्डर है, फॉर एग्जाम्पल दिस, क्या आप इसे अपने हाथ से उठा सकते हैं? नहीं. लेकिन जैसे ही आपने एक लेवर का यूज़ किया तो आप उसे ईजिली उसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करके उसे मूव कर सकते हैं. तो आपके लेवर के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, वो हैं आपके लोड, एफर्ट एंड फल्क्रम.
जिस ऑब्जेक्ट को उठाया जा रहा है लेवर से, दैट इज कॉल्ड लोड या फिर वेट। जैसे कि इसे उठाया जा रहा है तो ये आपका क्या है, लोड है। इसके बाद जो फोर्स उस पर अप्लाई हुआ है उसको लिफ्ट करने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड एफर्ट, दिस इज एफर्ट, है ना। और आपका ये तो लेवर है, ये जो रॉड है। इसके बाद जो पॉइंट जहाँ पे जो लेवर है वो टर्न होता है, दैट इज कॉल्ड फल्क्रम, राइट। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड फल्क्रम। Based on the position of the fulcrum, the load and the effort levels are classified into 3 types: first class, second class and third class. अब इसके बाद जो आपका लेवर है उसको भी 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्लास में। First class levers. It is a lever in which the fulcrum is located between the load and the effort. Example, a seesaw, a pair of scissors and a crowbar. इसमें क्या होता है कि आपका जो फल्क्रम होता है वो लोड एंड एफर्ट के बीच में होता है, राइट। मतलब कि आपका जो फल्क्रम है वो आपके लोड एंड एफर्ट के बीच में होता है। तो ये आपके सारे एग्जांपल्स हैं फर्स्ट क्लास लेवर के। सेकेंड लेवर क्लास, इन दिस क्लास ऑफ लेवर द लोड इज इन बिटवीन द फल्क्रम एंड द एफर्ट। अब क्या होगा कि लोड आपका बीच में आ जाएगा फल्क्रम एंड एफर्ट के, जैसे कि आपका बॉटल ओपनर है, व्हील बैरो है या फिर नट क्रैकर है। थर्ड क्लास लेवर्स, इन दिस क्लास ऑफ लेवर द एफर्ट is in between the fulcrum and the load. Example, fishing rods, stapler, tongs and forceps. अब आपका थर्ड क्लास में क्या हो जाएगा, एफर्ट अब आपके बीच में आ जाएगा, किस, फल्क्रम एंड लोड के। जैसे कि ये सारे ही एग्जांपल्स आपके थर्ड क्लास लेवर्स के हैं। पुली, a pulley is a simple machine which is used to lift heavy object. It consists of a wheel that has a grooved track for the rope, chain or belt to move through it. It makes our work easier by changing the direction of the force. पुली आपकी एक सिंपल मशीन होती है जिससे कि हेवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट किया जा सकता है, और ये हमारे वर्क को इजी कर देता है जब हम इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। नहीं, ये खुद ही करता है, वापस बोलते हैं। पुली, a pulley is a simple machine which is used to lift heavy object. It consists of a wheel that is a grooved track for the rope, chain or belt to move through it. It makes our work easier by changing the direction of the force. पुली आपकी सिंपल मशीन होती है जो कि हेवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने में हेल्प करती है, एंड ये हमारे काम को बहुत ईजी कर देती है क्योंकि ये फोर्स की डायरेक्शन को ही चेंज कर देती है। इन अ पुली द एफर्ट इज applied in one direction and the load is moved in another direction. Pulleys can be seen over flag posts to hoist flags in wells to draw out water. पुली के एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, जैसे कि कुएं से पानी निकाला जाता है या फिर जब फ्लैग को होइस्ट किया जाता है, ये सारे एग्जाम्पल्स आपके पुली के। There are 2 types of pulleys. Fixed pulley. A fixed pulley has a fixed axle and it is fixed firmly attached to one spot. In a pulley, an effort is applied in one direction and a load moves in another direction. Fixed pulley is used to draw a bucket of water from a well and to raise a flag to the top of a flagpole by pulling the rope. आपकी फिक्स पुली में ना एक फिक्स्ड एक्सल होता है एंड ये फॉर्मली अटैच्ड होता है एक स्पॉट से। तो क्या होता है, पुली में क्या होता है कि एफर्ट को अप्लाई किया जाता है एक डायरेक्शन में, जबकि जो लोड मूव करता है अनदर डायरेक्शन में। तो आपके एग्जांपल है जैसे कि हम कुएं से पानी निकालते हैं, बकेट को हम खींचते हैं, इसी तरह से जब हम फ्लैग को होइस्ट करते हैं। मूवेबल पुली, अ मूवेबल पुली हैज अ फ्री और मूवेबल एक्सल. इट इज यूज्ड along with a fixed pulley. A crane uses both fixed and movable pulleys to lift heavy loads. Movable pulleys helps to do more work by moving the load. मूवेबल पुली जो होता है इसमें आपका होता है कि फ्री और मूवेबल एक्सल होता है। अब इसको यूज किया जाता है एक फिक्स पुली के अलॉन्ग। क्रेन में आप जैसे एग्जांपल देखते हैं, इसमें आपका फिक्स्ड एंड मूवेबल पुलीज दोनों का ही यूज किया जाता है हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करने के लिए। स्क्रू, अ स्क्रू इज अ मॉडिफाइड इंक्लाइंड प्लेन wrapped around a cylinder. It is a nail-shaped object with a spiral ridges called thread and a slotted head. Since screw is really an inclined plane that goes round and round, it holds things together more firmly than a nail. Screws are used to fix light bulbs and to lift cars and trucks. The two primary functions of a screw are to hold things together or to lift objects. Bigger screws called screw jacks. Screw देखा होगा आपने, है ना, ये आपका एक्चुअली नेल जैसा ही होता है, जैसे कील होती है उसी के, बट एक्चुअली में आपका स्क्रू एक मॉडिफाइड इंक्लाइन प्लेन होता है जो रैप्ड होता है एक सिलेंडर में। इसमें आपने देखा होगा इस तरह से आपके स्पाइरल रिजेस होते हैं, राइट। तो स्क्रूज क्या होते हैं आपके, इसमें राउंड एंड राउंड ही जाता है, तो ये चीज़ों को फॉर्मली होल्ड करके रखते हैं। और आपको पता है स्क्रूज का यूज़ किया जाता है जैसे लाइट बल्ब को फिक्स करना है, कार्स या ट्रक्स को लिफ्ट करना है। बिगर स्क्रूज जो होती हैं उन्हें बोला जाता है स्क्रू जैक्स। Wedge. A wedge is a simple machine that is used to break apart substances by applying force. It has two inclined planes which
meet at a sharp edge. An axe, sizzle, sword, blade and knife are some examples of wedge. The sharp blade of a wedge helps in cutting and splitting things. Wedge आपका एक सिंपल मशीन है जिससे कि क्या किया जाता है, ब्रेक, किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक अपार्ट करने के लिए अगर आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं. इसके दो इंक्लाइन प्लेन्स होते हैं जो कि एक शार्प एज पे मीट करते हैं. आपका एक्स, सिजल, सॉर्ड, ब्लेड, नाइफ, ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके वेज के. द इंक्लाइन प्लेन. An inclined plane is simply a slope over which a load can be pushed up. Most of you have fun playing on a slide in the park. You must have observed that sliding down a smooth slope is faster and easier than climbing up the ladder. This is because the slope is an inclined plane while the ladder is not. When workers have to load or unload a truck that use a plank of wood as an inclined plane, in hospitals and buildings, inclined planes called ramps are provided next to a staircase. This helps in pushing up wheelchairs. इंक्लाइन प्लेन आपका सिंपली एक स्लोप होता है जिसमें आपके लोड को पुश किया जा सकता है. अब जैसे कि आपने स्लाइड्स पार्क में देखे होंगे एंड आप उसमें ईजिली स्लाइड डाउन करते होंगे, तो आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि स्मूथ स्लोप पे स्लाइड करना कितना ईजी है, कितना फास्ट है, रेदर देन क्लाइंबिंग अप द लेडर. अब जैसे वर्कर्स हैं, उनको कोई ट्रक से कोई भी भारी सामान लोड करना है या लोड करना है तो वो एक वुड प्लैंक का यूज़ करते हैं. देखिए ये इंक्लाइंड ही है. इसी तरह से आपके रैम्प्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपके बिल्डिंग्स या हॉस्पिटल्स में नेक्स्ट स्टेयरकेस के. इससे क्या होता है कि व्हील चेयर्स को पुश करने में, अप करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है. व्हील एंड एक्सल. Wheel and axle make work easier by moving objects across distances. The wheel itself is not a machine. It becomes a machine only when a rod called axle is attached to it. As the axle rotates, the wheel also rotates. The spinning wheel, the steering wheel of a car, a spinning top, bicycle wheels, and a screwdriver are some examples of wheel and axle. Wheel and axle हमारे काम को काफ़ी ईजी कर देते हैं क्योंकि ये सब ऑब्जेक्ट्स को मूव कराते हैं. अब व्हील आपका मशीन तो नहीं है, लेकिन ये मशीन बन जाता है जब एक रॉड जिसे कहते हैं एक्सेल उसके साथ अटैच की जाती है. तो जब एक्सेल रोटेट करता है तो व्हील भी रोटेट करता है. अब आपके कुछ एग्जांपल्स है जैसे स्पिनिंग व्हील है, स्टीयरिंग व्हील होते हैं आपके कार के, स्पिनिंग टॉप, ये सारे एग्जांपल्स है व्हील एंड एक्सेल के. Let's remember, simple machines have fewer parts and use muscular energy to function. Complex machines have more parts and use electrical or fuel energy. There are different kinds of simple machines such as lever, inclined plane, pulley, screw, wedge, wheel and axle. सिंपल मशीन में कुछ ही पार्ट्स होते हैं और हम इसमें ज़्यादातर अपनी मस्कुलर एनर्जी का यूज़ करते हैं इनको फंक्शन कराने के लिए. कॉम्प्लेक्स मशीन में ज़्यादा पार्ट्स होते हैं और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर फ्यूल एनर्जी का यूज़ करते हैं. और आपके डिफरेंट तरह के सिंपल मशीन्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स, levers are of three kinds: first class, second class and third class. A pulley is a small wheel with a groove around its edge. It changes the direction of force and lifts load. A screw is an inclined plane which is used to hold things together. पुली आपका एक छोटा सा व्हील होता है जिसमें ग्रूव्स होते हैं उसके एजेस के अराउंड. ये क्या करता है, फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करता है एंड देन लोड को लिफ्ट करता है. इसी तरह से आपका स्क्रू एक इंक्लाइन प्लेन होता है जिसको चीज़ों को होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है. चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.